I spent weeks testing this affordable mini drone on my rides. This is a DJI Neo 2, and honestly, I didn't expect much from a very budget option. But this little guy, it surprised me in ways I had never imagined. Today, we are going to dive deep into everything you need to know about this mini drone, the good, the bad, and whether it's actually worth your money as a rider. Let me start with what really impressed me, and then I'll get into the limitations you absolutely need to know about before you plan to buy this one. Let's talk about the build quality and portability. First thing that caught my attention is that this drone feels surprisingly solid for the price point. I've crashed this multiple times during my testing, and we are talking about crashing into tree branches, rocky terrain, etc. The result is just a few scratches here and there and no damages to the body. The build quality is good and it can handle occasional mishap, which is crucial when riding in unpredictable terrain. साइज वाइज जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा है, इजीली कहीं भी मेरे टैंक बैग में, बैक पैक में आई कैन फिट इट, एंड इसका वेट भी नोटिस नहीं होता. आई थिंक 145 ग्राम्स है, अभी इसका मॉड्यूल मेरे पास लगाना बाकी है, उसके बाद ये 150-160 हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी लाइट वेट. यू कैन सी इट इज़ वेरी लाइट वेट. ट्रैकिंग परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात कर लेते हैं. दैट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस ड्रोन, दैट विदाउट फोन, विदाउट कंट्रोलर यू कैन ट्रैक इट. नो कंट्रोल इज नीडेड, नो बाइक माउंटिंग ऑफ फोन और कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एंड इट वर्क्स really well. The drone maintains a steady distance and captures smooth footage of your riding. जितना भी मैंने देखा, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स डाले थे. The 360 degree avoidance worked genuinely and काफ़ी अच्छे उसने कोलिजन्स वगैरह अवॉइड किए मेरी टेस्टिंग के दौरान, एंड उसमें बहुत बार मैं बोलूँगा ट्रैकिंग भी अच्छी स्मूथली इसने किया है. बट let's talk about the elephant in the room. It is the speed limitations. For bikers, I'm talking about. Above 40 kmph, it starts losing track. And then what it does is it tries to keep up, and that is the chance when it is going to crash. Because it is getting into panic mode, trying to keep up, trying to track you, and that is where it starts missing out on trees, branches, etc. There's also no top-down tracking, which I think should have been there. So it limits your creative shots, but it excels especially in the follow from behind. And थोड़ा सा पीछे वाला एंगल भी आप लोग उसमें करेगा. अगर आपको बाकी कोई शॉट्स लेने हैं, मतलब ओवरहेड शॉट्स लेने हैं, तो यू नीड अ सेपरेट कंट्रोलर. फ्रंट में इसका लाइडार नहीं काम करता है, तो आई थिंक उसकी वजह से ये इतना अच्छा ट्रैक नहीं कर पाता, बट बाकी ट्रैकिंग कर लेता है. और इसमें जो इसके ये सेंसर्स वगैरह हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं फॉर ट्रैकिंग. एक बार वीडियो क्वालिटी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी बात कर लेते हैं. Video quality delivers what it promises for social media content. You get 4K 30 recording during tracking mode with approximately 40 Mbps of bitrate, which is okay for social media. That's going to be clean and social ready footage, perfect for your reels, shorts, etc. थोड़ा सा कुछ misleading marketing मैंने देखा है जो वेबसाइट पे है. It was claimed that it is a 4K 60 capable drone, but during tracking mode you are limited to 4K 30. There is also no log footage option. होता तो बहुत बढ़िया होता है, एडिटिंग कलर ग्रेडिंग में एडवांटेज मिल जाता, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती बेसिकली आपको एज कम्पेयर टू बेसिक ड्रोन्स. वर्टिकल फिल्मिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप सोशल मीडिया के लिए आप क्रिएट करते हो तो वो गिम्बल रोटेट नहीं होता है. इट क्रॉप्स इनटू दैट 4K फुटेज and it gives somewhere around 2.7K resolution in that mode. So basically you are going to lose some quality while you are shooting vertically. Although YouTube Shorts, Instagram, Reels, Stories वगैरह 2.7K भी decent है. तो ये क्रिएटिव अगर फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा जो है मैं बोलूँगा लिमिट कर देता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ एंड स्टोरेज. लेट्स बी रियलिस्टिक. बैटरी लाइफ क्लेम्ड है 17-18 मिनट्स, बट प्रैक्टिकल फ्लाइट टाइम इज अराउंड 10 to 12 मिनट्स. उसमें भी सेटिंग करते करते थोड़ा सा और टाइम लग जाता है. तो अगर आप लेते भी हो तो मुझे लगता है इस कैटेगरी के हिसाब से वैसे तो ठीक है, बट मल्टीपल बैटरी जरूर लेना. फ्लाई मोर कॉम्बो मेरे हिसाब से इस ड्रोन के लिए तो आपको लेना ही चाहिए, मैंडेटरी है. स्टोरेज भी इस पे इंटरनल है, इसमें कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, तो आपको स्टोरेज के लिए भी इसको कनेक्ट करके तो फ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आपको अपने PC में ऑफलोड करना पड़ेगा. ऑल्दो क्योंकि 40 Mbps की फाइल्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है. काफ़ी दिन आप यूज़ करोगे तो भी इसका स्टोरेज फुल नहीं होता है. 49 GB इंटरनल स्टोरेज है. मल्टीपल डे का ट्रिप होगा तो शायद से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर कभी कभार जा रहे हो, कभी वंस अ वीकेंड जा रहे हो, तो आई थिंक दैट विल बी फाइन. फोन ओनली कंट्रोल जो इसमें एक है मैनुअल शॉट्स के लिए, वो बहुत ही वियर्ड है. मैंने ट्राई किया, मुझसे हुआ ही नहीं वो. तो अगर आपको प्रिसीजन फिल्मिंग करनी है, टॉप डाउन शॉट्स लेने हैं, कुछ क्रिएटिव एंगल्स लेने हैं जो ऑटोमेटेड नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन कंट्रोलर लेना चाहिए जो इसका एक कॉम्बो आता है, प्लस साथ में इसका वाईफाई मॉड्यूल लेना चाहिए. तो फोन विदाउट फोन वाला इतना नहीं है. जेस्चर कंट्रोल में बोलूँगा हिट और मिस है, स्पेशली राइडिंग गियर के साथ. राइडिंग गियर के साथ आप लेफ्ट राइट मूव आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन जो ये
ब्रिंग क्लोज एंड सेंड फार अवे जो करते हैं वो नहीं डिटेक्ट होता है, हेलमेट होता है, बाकी सब चीज़ें होती है, इट डज नॉट डिटेक्ट। उस पर मेरे 1-2 बार ड्रोन भी क्रैश हो चुका है ये करते करते। एंड व्हेन यू ट्राइंग टू पोजीशन इट क्विकली, सिर्फ एक पोजीशन वगैरह ठीक हो सकती है, बट दूर भेजना पास लाना एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल राइडिंग कंसिडरेशंस कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी एक विजिबिलिटी और रिकवरी एक मुझे प्रॉब्लम लगी है, क्योंकि बहुत ही ग्रे सा है ये। तो जब भी हम ट्रेल वगैरह पे जाते हैं, झाड़ियों वगैरह में वेजिटेशन में क्रैश हो जाता है, ये दिखता नहीं है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि इसका जो ये प्रोपेलर गार्ड है वहाँ को मैं रेड पेंट कर दूंगा, ऊपर कुछ हाई विज रेडियम स्टिकर जो आते हैं वो लगा लूंगा, सो दैट आई कैन एटलीस्ट लोकेट इट आफ्टर अ क्रैश। एंड ट्रस्ट मी, इट्स सच अ स्मॉल ड्रोन, finding it where it has crashed in that foliage is not easy. 30-40 मिनट हमारे एक बार लग गए थे. Now who should buy this drone? This drone is perfect for casual riders who want quick, engaging social media content without the complexity of professional equipment. कोई रिमोट कुछ जरूरत नहीं है, नॉर्मली यूज करो, बहुत बढ़िया चलता है। लीजरली राइड्स वगैरह करते हो, अपने सेल्फीज लेते हो, ग्रुप शॉट्स लेते हो, सर्कल, स्पाइरल, सब कुछ बहुत बढ़िया ये कर सकता है। एंड हैंड्स फ्री ट्रैकिंग जो है बहुत ही मुझे लगता है कन्वीनियंट है, स्पेशली सोलो राइडर्स वगैरह के लिए, क्योंकि ड्रोन जो है ना इट कैप्चर्स द ग्रैंडियर ऑफ द लोकेशन। वहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही यूजेज का है। अगर आप फास्ट ट्रैकिंग चाहते हो, तेज चलाते हो, रोड्स पे चलाते हो, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली, बिकॉज दिस ड्रोन कैन नॉट ट्रैक यू। तो आप सिर्फ अभी किसी अच्छे स्पॉट पे पहुंचोगे तभी यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एडवांस यूज़र हो, आपको चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो मेरे हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो विद द कंट्रोलर इट कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट कैन बी अ वेरी गुड बिगिनर ड्रोन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, आई वुड से। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कैजुअल यूज़र हो, डेफिनेटली आप ले लो। जो मैंने नेगेटिव्स बोले वो आप फिक्स कर सकते हो, यू कैन फाइंड योर वर्क अराउंड थ्रू इट। तो ये जो स्मॉल ड्रोन है, इट डिलीवर्स सॉलिड प्राइस पॉइंट, वैल्यू बहुत अच्छी देता है, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बहुत बढ़िया है, प्रोफेशनल फिल्मिंग सोल्यूशन नहीं है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कैजुअल राइडर्स के लिए आई थिंक एक नया डायमेंशन ऐड होता है। मतलब एक व्लॉगर वगैरह जो शुरू कर रहा है उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको एक एक्सपेंसिव ड्रोन नहीं लेने की ज़रूरत है। एक आप गोप्रो वगैरह टाइप कुछ कैमरा ले लो, आप एक ये ड्रोन ले लो, एंड आई थिंक यू आर सॉर्टेड। तो बेसिकली लेस देन 1 लाख में यू कैन हैव अ वेरी गुड व्लॉगिंग किट टू बिगिन विद। एंड थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन मैंने बताई दी, आप वो कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। एंड मेरी तरफ से ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस Neo 2 ड्रोन। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ है, कौन से फीचर्स आपको मैटर करते हैं, नहीं करते। आपको अगर ऑनेस्ट गियर रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, एंड वील कीप यू interested in motorcycling and keep growing together. I'll see you in the next one.